Good morning, everyone. In today's session, we are going to study about the atomic size, the different type of atomic radii, what are the different factors which affects the atomic size, and what are isoelectronic species, and the trend of the size among these isoelectronic species, and the determination of the atomic size. So we will discuss all these subtopics in our today's session, in our today's class. So let's start today's session. First of all, we must have the knowledge about the atomic size, or you can say the atomic radii. Atomic size means atomic radius. So what do you mean by the term atomic size? For that, you can see that particular diagram. In that diagram, you can see if we measure a distance from the center of the nucleus to the valence shell, that distance is called as the atomic size, or you can say, because it is the radius, it is the half of the diameter, so it is the radius. So radius is the size of any of the atom. So the distance from the center of the nucleus to the outermost shell is known as the atomic size. But as we all know, the electron move in the form of the wave. So sometime that distance increases, other time it decreases, other time increases, then decreases, and so on. In the valence shell or in any of the shell, when electron move, it moves in the form of the wave. So due to their particle as well as the wave nature, we will take the average of that, and average comes that particular point that we called in the previous definition, the distance from the center of the nucleus to the outermost shell. Or in other way, because sometimes the electron distance increases due to their wave nature, the time decreases, and so on, means their boundaries are not fixed. Means for that we can say up to the maximum distance up to which their electron cloud is spread, the distance up to which maximum an outer shell electron can move. So on that basis we can define the atomic size like that: the distance from the center of the nucleus to the distance up to which electron cloud is spread, or you can say electron cloud is maximum, is called as the atomic size. मीन्स जो एटॉमिक साइज है उसका मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके वैलेंस शेल तक के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसे हम रेडियस भी कहते हैं, उसे हम कहेंगे एटॉमिक साइज। या जो वैलेंस शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो वेव की फॉर्म में मूव करता है। तो वेव की फॉर्म में मूव करते वक्त जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो पोजीशन है, वो ये जो हमने पॉइंट लिखा था कि वैलेंस शेल को जो हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे कि यहाँ तक है, तो ये इससे थोड़ा दूर भी मूव कर जाता है, और कुछ अगले ही पल जब वो वेव की फॉर्म में चलता है तो कुछ उससे अंदर की साइड भी आ जाता है। तो एवरेज पॉइंट वही बनता है। ऑन दैट बेसिस हमने जो पहली डेफिनेशन लिखी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल, दूसरी डेफिनेशन में हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन क्योंकि वेव की फॉर्म में चलता है तो कहाँ दूर तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है मूव करते हुए। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, the distance from the center of the nucleus to the distance up to which the electron cloud is maximum or the spread is called as the atomic size। क्योंकि एक बार वो डिस्टेंस बढ़ता है, एक बार घटता है, तो फिर हम या तो घटे वाला भी नहीं ले सकते डिस्टेंस और बढ़ने वाला भी नहीं ले सकते, हम दोनों का एवरेज लेते हैं। तो इसलिए पॉइंट आना यही होता है। ऑन दैट बेसिस बोथ द डेफिनेशन आर करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, why we can't determine the size of an atom precisely। हम किसी भी एटम का जो साइज है वो प्रिसाइजली डिटरमाइन क्यों नहीं कर सकते, वो बातें अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस भी की, आपको बताया। तो रीजन बिहाइंड दैट इज the size of the atom cannot be determined precisely because electron cloud doesn't have the sharp boundary, because it move in the form of the wave, so sometime their distance increase, other time their distance decreases. Because of that reason we can say that their boundaries are not sharp. The electron cloud doesn't have the sharp boundary. Other mean is that the atomic radii changes from one environment to other, because the same atom can form the bond with different element
of different nature, different of electronegativity. So because of that region also the boundary may change, means the atomic radii may change. So the atomic radii changes from one environment to the other one. Atomic radii of the atom is different in different bonded state, like I have already stated you. So because of that region the size of an atom cannot be determined precisely. हम जो एटम का साइज बिल्कुल एग्जैक्टली क्यों नहीं मेजर कर सकते, उसकी ये बातें बताई अभी हमने आपको कि इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है उसकी बाउंड्री शार्प नहीं होती, एक फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है, वो स्प्रेड है, वेव की फॉर्म में चलता है, और वेव की फॉर्म में चलने की वजह से उसकी बाउंड्री शार्प नहीं है। साथ के साथ जो एक एटम होता है वो दूसरे इन्वायरमेंट, सराउंडेड इन्वायरमेंट से भी आपके घिरा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर इफेक्ट होना होता है, वो डिफरेंट बॉन्डेड स्टेट में हो सकता है, अलग अलग एटम के साथ एक एटम बॉन्ड बनाता है और जिसकी वजह से उसकी रेडियस के अंदर चेंज आ जाता है। तो जिसकी वजह से हम जो कोई भी जो एटम होता है उसका जो साइज है वो हम बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिसाइजली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। Next point is what are the different type of the radii. Because of that reason we have to determine the different type of radii. These different type of radii category, the first one is the covalent radii. What is the covalent radii? As we all know, the stablest group in the periodic table is group number 18. Group number 18. So what other elements will precisely want to do? They want to get stabilized, they want to get achieve the configuration like that of the group number 18. For doing so the atom of an element may lose the electron, may gain the electron, may share the electron. The sharing may be the equal sharing, maybe the unequal sharing. Means during sharing of the electron an atom form a bond called as the covalent bond if the sharing is mutual one. If the sharing between the two atom is unequal, then it is called as the coordinate bond. So first of all we are talking here about the formation of the covalent bond, means mutual sharing, when mutual sharing occurs between the two atoms. So when mutual sharing occur in between the two atoms, then sharing means the overlapping of their orbital takes place, overlapping of the valence shell orbitals takes place. So on that basis we are going to define here the covalent radii. So you can see here these are the two atoms. For example, one is the hydrogen atom, other one is the hydrogen atom. So when these two hydrogen atom approaches each other, come closer to each other, their valence shell orbitals overlap each other. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने एक जो orbitals हैं आपस में एक दूसरे के अंदर merge कर गए. So that region is called as the merging area, and that area is called as the bond, means bonding takes place, sharing of electron takes place in that particular region. Because of that region, one of the atom center point, that is a nuclear point, is that one, other one the central nuclear point is that one. If we measure the distance between these two nuclear points and we make it half, then it is called as the covalent radii. So what is the covalent radii? मीन्स कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि अगर हम इन दो एटम का सेपरेटली हम रेडियस और रेडियस लेके हम सम अप नहीं कर रहे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक एटम का मान लीजिए जो रेडियस है, देखो ये रेडियस, देखो यहाँ से लिए लेके यहाँ तक एक एटम का जो रेडियस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर होता, दूसरे का भी 5 सेंटीमीटर ही है, अगर फॉर एग्जांपल हम मान ले दोनों एच एटम है, तो जो टोटल डायमीटर होना चाहिए वो 5 और 5 10 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि कुछ एरिया इनका देखो ओवरलैपिंग की वजह से कॉमन हो गया। आप देख भी पा रहे हैं, देखो एक का रेडियस तो हमने फुल ले लिया 5 सेंटीमीटर और दूसरे का देखो थोड़ा सा एरिया बच गया ड्यू टू दैट ओवरलैपिंग। मान लीजिए ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही बच गया, तो 5 + 1 6 सेंटीमीटर ही बना। इस पूरे का फिर हमें हाफ करना है, और मान लीजिए वो तो 3 आ गया, नहीं तो 5 + 5 10 डिवाइडेड बाई 2 तो वो तो 5 आता है, लेकिन ये कितना आया, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 6 है ड्यू टू दैट ओवरलैपिंग रीजन। So 6 divided by half, that called as the covalent radii. What is now the covalent radii? Covalent radii means the half of the distance, the half of the distance between the nuclei of these two similar bonded atoms. That may be the, they may not be similar, they may be similar, but if these are similar here, that's why I'm giving that particular definition. The half of the distance between the nuclei of two bonded atoms, हम डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं, सिमिलर और नॉट सिमिलर कहने की बजाय हम ऐसा भी कह सकते हैं, the half of the distance between the nuclei of two bonded atoms. Bonded means overlapping atoms. Okay, so that is called as the covalent radii. You can write it here, means diameter, that is not exactly the diameter,
we are just taking the distance and take half of it, then it is called the covalent radii. Okay, the next one is the van der Waal radii. In case of the van der Waal radii, generally we use that particular term for the group 18 elements, but the bonding in between any of the two species, for example, I have a pen and I place it on my palm, then the attraction between the pen and the palm is called the van der Waal bond. So the interaction in between any two species, for example, in between two hands, that is the van der Waal bond. Means that bond can be found in between any two atom, in between any two molecules, like that. So that particular term can be used for any two species, and these species are not the bonded species. इनके बीच एक्चुअल में कोई कोवलेंट बॉन्ड, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोई एनी टाइप ऑफ दूसरा यानी कोई भी इनके बीच में बॉन्ड नहीं, ये नॉन बॉन्डेड एटम्स होती हैं। तो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड बनता है, आप उसे van der Waal बॉन्ड कहते हैं। आप क्या कहते हैं? van der Waal बॉन्ड। मींस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर इंटरेक्शन, जब ये van der Waal बॉन्ड बनना होता है, सो देयर इज ए पर्टिकुलर समथिंग लिमिट अप टू विच द टू स्पीसीज कैन अप्रोच ईच अदर। वो बिल्कुल एक दूसरे को टच नहीं कर पाती। जैसे आपने कोवलेंट बॉन्डिंग में तो देखा था कि दो एटम एक दूसरे के पास आए, उनके जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में एक दूसरे को क्या कर गए? ओवरलैप ही कर गए थे। लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग तो बात दूर है, ये एक दूसरे को टच भी नहीं कर पाते, एक दूसरे से दूर ही रह पाते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनना होता। और ये एक दूसरे से दूर क्यों रह पाते हैं? क्योंकि जो ये दो स्पीसी हैं, इनके बीच में दोनों के अंदर आपके न्यूक्लियस भी है, इन दोनों के बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। So due to that positive repulsion between the nuclei of these two species, and due to the electron repulsion between the electrons of these two species, they can approach only up to a particular distance, not much greater than that। यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। इनके बीच में गैप जरूर रहेगा। तो ये गैप वाली दो स्पीसी, ये गैप वाली दो स्पीसी कोई एटम भी हो सकती है, ये गैप वाली दो स्पीसी कोई मोलिक्यूल भी हो सकती है। और जब इन दो गैप वाली दो स्पीसी को हम देखेंगे इस डायग्राम की फॉर्म में, देखिए आप यहाँ पे देखें, मान लीजिए दो स्पीसी हैं, मान लीजिए दोनों हीलियम एटम हैं, एक दूसरे के नजदीक ही इतना ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा एक दूसरे का अप्रोच नहीं कर पाएंगे, उसके बाद में इन दोनों के बीच रिपल्शन आ जाएगा। सो दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। After acquiring that maximum distance of approach, now what we have to calculate? Similarly, in the below diagram you can see these are the two molecules। For example, one is the H2, जैसे हमने पीछे डायग्राम बनाया था, यानी एक H है, दूसरा H है, ये H2 बन गया, फिर दूसरा H और H है, ये H2 बन गया। तो इस टाइप से मान लीजिए एक H2 और दूसरे H2 को एक दूसरे के नजदीक लाना है, तो एक मैक्सिमम लिमिट तक ये नजदीक आ सकते हैं। उसके बाद में आपने देखा, देखो इनके बीच में कोई गैप रह गया, एक H2 दूसरे H2 के बीच में गैप, एक हीलियम दूसरे हीलियम, इसके बीच में कुछ गैप, मींस मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो इनके बीच है वो वहां तक आ गए। उसके बाद अब हमें क्या करना है? जो ये मैक्सिमम अप्रोच वाला डिस्टेंस आ गया, तो हमें इन दोनों के, ये न्यूक्लियाई लिया, देखो ये न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस लिया, उसका हाफ कर देंगे, दैट कॉल्ड द van der Waal रेडियस। सिमिलरली मोलिक्यूल जब एक दूसरे के नजदीक आए, देखो ये हमने इसका एक जो मैक्सिमम अप्रोच वाले दो एटम हैं इन मोलिक्यूल्स के, इस मोलिक्यूल का ये एटम और दूसरे मोलिक्यूल का ये एटम जो एक दूसरे को अप्रोच कर पाए, इनके न्यूक्लियाई के बीच का हमने डिस्टेंस लिया और उसका हाफ कर दिया। सो दो ये डिस्टेंस है जो हाफ हमने करके आया हमारा आंसर, दैट कॉल्ड द van der Waal रेडियस। और आपने देखा, मान लीजिए एक का रेडियाई है, मान लीजिए एक H2 है, दूसरा H2 है, तो होगा क्या? मान लीजिए इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, बीच में मान लीजिए डिस्टेंस रह गया 2 सेंटीमीटर, तो 5 5 10 और 2 12, 12 बाय 12 का हाफ करेंगे तो 6 आ जाए। ऐसा नहीं हुआ कि 5 इसका डायमीटर है, 5 इसका डायमीटर रेडियस है, 5 रेडियस 5 5 5 10 बाय हाफ, नो, बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, तो वो भी काउंटिंग में आ गया। नाउ दैट इज कॉल्ड एज द van der Waal रेडियस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ van der Waal रेडियस? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द nuclei of two nearest non-bonded species, that species may be the atom or the molecule, so that called as the van der Waal radii। And on that basis we can easily see here which type of radii is larger in size. The van der Waal radii is always larger than the covalent radii। On that simple basis, on the basis of the definition, we can say that, because in case of the van der Waal radii, we have taken here the half of the distance between the nuclei of the two nearest non-bonded atom, while in case of the covalent radii, we have taken the half of the distance between the nuclei of the two bonded atom, two overlapped atoms। Okay, on that basis we can say that van der Waal radii is larger than the covalent radii। Now the next one is the ionic radii।
Ionic radii means we have taken the two species, that is the one, for example, NaCl, NaF, like that, any of the two species. One is the cation, other one is the anion one. So when we have the two species, when they approach each other, when they come in contact with each other, then what will happen? We will take, when they come closer to each other, what we have taken, the center of the nuclei to that particular point. That is the ionic radii of the cation, positive part. If we take the distance from the center of the nuclei to that here, that called as the ionic radii of the anion. So on that basis, what we call it, the distance from the center of the nucleus of the ion to the valence shell is called as the ionic radii. It's called as the ionic radii. Okay, so the next one is the metallic radii. For determination, for giving the definition of the metallic radii, we must have the knowledge about the lattice of the metals. You can see here is the metallic lattice, in which that is different type of atom, different type of metals. We generally show all type of species in the form of the sphere. हम सभी जो एटम होते हैं, आयंस होते हैं, सभी को हम स्फीयर की फॉर्म में ही रीड करते हैं. तो स्फीयर की फॉर्म में जब हम उनको रखेंगे और उनकी क्लोजेस्ट पैकिंग करेंगे, तो क्लोजेस्ट पैकिंग ये हमने कर दी ताकि उनके बीच में मिनिमम स्पेस रहे. क्लोजेस्ट पैकिंग की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं. क्लोजेस्ट पैकिंग एक ऐसी पैकिंग होती है जिसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको कुछ इस टाइप से अरेंज करेंगे ताकि हमें मिनिमम से मिनिमम वैकेंट स्पेस वहां पे बचे. तो ऐसी पैकिंग को हम कहते हैं क्लोजेस्ट पैकिंग. द पैकिंग इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट द मिनिमम स्पेस इज लेफ्ट बिहाइंड, सो दैट कॉल्ड एज द क्लोजेस्ट पैकिंग. तो इन दैट क्लोजेस्ट पैकिंग, इफ दीज स्पीसीज, दीज स्फीयर्स आर ऑफ मेटल, तो जो ये मेटल हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूज, बिल्कुल लूज होते हैं. मींस इसके इलेक्ट्रॉन अगले के वैलेंशियल में मूव कर जाते हैं, फिर एंड सो ऑन, दे आर अंडर मूवमेंट, दे आर अंडर मूवमेंट लाइक दैट. Now what is the distance between the two closest approached species? जो दो क्लोजेस्ट अप्रोच वाले कोई भी जो दो आपके ये मेटल हैं, इनके बीच का जो सेंटर का जो न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है, दैट द डायमीटर है, उसका अगर हम हाफ कर दें तो वो आपके क्या कहलाता है? दैट द मेटेलिक रेडियस. यहाँ पे दो एटम एक दूसरे को बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे. आपने देखा कोवलेंट रेडियई के अंदर वापस दो एटम जो थे आपस में ओवरलैप कर गए थे. वंडरवाल रेडियई में आपने देखा कि जो दो आपके एटम थे वो एक दूसरे से मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच पे आए, लेकिन एक दूसरे को टच भी नहीं कर पाए, उनके बीच में कुछ गैप रहा. मेटेलिक रेडियई में क्या देखेंगे हम? मेटेलिक लैटिस के अंदर के दो एटम ने एक दूसरे को कांटेक्ट में आ गए. क्या कर लिया उन्होंने? कांटेक्ट में. अब इनके जो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस लेंगे और उसका हाफ कर देंगे, लाइक दैट हियर. जो ये दो आपके मेटल के एटम हैं, ये एक दूसरे के क्या है? कांटेक्ट में आ गए. इन दोनों का देखो डिस्टेंस, या मान लीजिए जो डायमीटर का डिस्टेंस है 290 था, एग्जैक्ट हाफ 145 हो गया. So that is called as the metallic radii. Now what is the definition of metallic radii? The half of the distance between the nuclei of two adjacent metal ions in the metallic lattice is called as the metallic radii. On that basis हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी रेडियाई बड़ी होगी. तो मीन्स देखो ये रहा कोवलेंट रेडियाई, जिसमें जो हमने जो डिस्टेंस लिया था, हमने क्या लिया था कि वी हैव टू ओवरलैप्ड एटम्स. ओके. मेटेलिक रेडियई में क्या देखा हमने? दो आपके एटम्स लिए, मेटल के एटम जो जस्ट एक दूसरे से टच हैं. हमने वंडरवाल रेडियई में क्या लिया? दो एटम या मॉलिक्यूल हमने ऐसे लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के ऊपर आ गए, एक दूसरे को टच भी नहीं कर पाए. फिर सभी के अंदर हमने एक चीज कॉमन ली कि हमने जो दो न्यूक्लियाई थी, जैसे मान लीजिए ओवरलैप्ड एटम थे, ये यहाँ पे बॉन्डेड एटम है, तो इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस का हाफ करना है. मेटेलिक रेडियई में भी जो ये दो एटम है, इनके न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस का हाफ करना है. वंडरवाल रेडियई में भी जो ये दो आपके एटम या मॉलिक्यूल्स की जो क्लोजेस्ट अप्रोच वाले दो स्पीसीज के जो एटम हैं, इनके न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस का हाफ करना है. ऑन दैट बेसिस यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट which radii is largest in size. The van der Waals radii is the largest and the smallest will be the covalent radii. So the increasing order of the different type of radii will be the covalent radii is smaller than the metallic radii and metallic radii is smaller than that of the van der Waals radii. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है. और जब भी आप इसकी रीजनिंग देंगे तो फिर डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर ही देंगे. आप इस तरह से डायग्राम ड्रा कर देंगे और डायग्राम ड्रा करने के बाद जस्ट राइट द डेफिनेशन पार्ट हियर.
ओके, तो वो किस तरह से आप लिखेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, वाई वंडरवाल रेडियाई इज लार्जर देन द कोवलेंट रेडियाई, तो आप क्या लिखेंगे, आप सिंपल ऐसा लिख देंगे, एज वी नो दैट द वंडरवाल रेडियाई इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नियरेस्ट नॉन बॉन्डेड एटम्स, while the covalent radii is the half of the distance between the nuclei of two bonded atoms. Hence, the van der Waal radii is larger than the covalent radii. अगर क्वेश्चन पूछा जाए van der Waal और covalent radii के बीच, तो आप van der Waal radii वाला डायग्राम ये ड्रा कर दें और covalent radii वाला डायग्राम ड्रा कर दें, और इस तरह से आप उनकी डेफिनेशन को किसी एक की डेफिनेशन से स्टार्ट किया, बीच में बट लगा दिया आपने, एंड सो ऑन, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, व्हाई मेटेलिक रेडियाई इज लार्जर देन द कोवलेंट रेडियाई, तो सिमिलरली सबसे पहले आप ये दोनों डायग्राम ड्रा कर देंगे, और डायग्राम ड्रा करने के बाद फिर देखो उसी टाइप से डेफिनेशन वाला पार्ट, एज वी नो दैट, ऐसा ही स्टार्ट करेंगे, सिंस एज वी नो दैट द मेटेलिक रेडियाई इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two adjacent metal ions in the metallic lattice, while the covalent radii is the half of the distance between the nuclei of two bonded atoms. So metallic radii is larger than the covalent radii. So in that way, we can give the response, give the answer of such type of question. Okay. The next question is, why the atomic radii of noble gases are usually expressed in van der Waal radii? इसका बड़ा सिंपल रीजन है, बिकॉज द नोबल गैसेस, द ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव द फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन, so they cannot form any type of bond, so we can measure only the closest approach between these two atoms, so we can only determine their van der Waal radii, because there can be no possibility of formation of any type of bond between these group 18 elements, or the you can say the noble gases. So the atomic radii expressed for the noble gases are usually the van der Waal radii. ओके तो इस तरह से आप इसका जवाब दे देंगे। सो दैट इज अबाउट दीज डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई, देयर ट्रेंड, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ these radii. Okay, now the next important topic about the atomic size is the what are the different type of factors which affects the size, on which factors the size depends. The size mainly depends upon these two factors. One is the screening factor, other one is the effective nuclear charge, and their resultant कि which of the following two factor dominates over the other one. मीन्स इन दोनों फैक्टर में से एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेगा, और जब डोमिनेट कौन सा किसके ऊपर करेगा वो डिपेंड होगा कि हम जो ट्रेंड देखना चाहते हैं वो कहाँ पे देखना चाहते हैं, हम डाउन द ग्रुप देखना चाहते हैं या पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट देखना चाहते हैं। तो जहां पे भी हम देखेंगे वहां पे इन दोनों में से कोई एक फैक्टर दूसरे के ऊपर डोमिनेट करेगा, तो on that basis we can determine the trend of the size. So we can say exactly here that what I have written here, the size depends upon the resultant of these two factors, that is the screening effect एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक चीज और हम आपको बता दें कि जो स्क्रीनिंग होती है मींस न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में आने वाले जितनी भी शेल है वो स्क्रीन का काम करती है, रुकावट करती है। मींस जब रुकावट आ जाएगी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगी। मतलब स्क्रीनिंग फैक्टर जितना बढ़ता है उसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच अट्रैक्शन घट जाती है, और जिसकी वजह से साइज बड़ा हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, मींस न्यूक्लियस की पावर, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज की पावर, अगर वो फैक्टर डोमिनेट करेगा तो क्या करेगा, जो न्यूक्लियस होता है वैलेंस शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब भी वो अट्रैक्ट करेगा तो साइज आपका सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि वैलेंस हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके वैलेंस शेल तक के डिस्टेंस को ही तो हम साइज कहते हैं। तो जैसे ही वैलेंस शेल न्यूक्लियस के नजदीक आएगी इट मींस साइज डिक्रीज हो रहा है, मींस रेडियस डिक्रीज हो रहा है, रेडियस मींस साइज। तो ये जो रेडियस है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम रेडियस, जिसको साइज कहते हैं, ये जो डिस्टेंस घट रहा है या बढ़ रहा है, अगर डिस्टेंस रेडियस कम तो साइज कम, अगर रेडियस बड़ा हो गया तो साइज बढ़ गया। तो ये साइज छोटा कब होगा, जब न्यूक्लियस की पावर, पॉजिटिव चार्ज की पावर ज्यादा हो और वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, जिसकी वजह से रेडियस छोटा हो जाए, और जिसकी वजह से हम कह पाएंगे कि साइज डिक्रीज हो गया, एंड वाइस वर्सा।
तो अब आप समझ गए होंगे इन दो फैक्टर का मतलब। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं। अगर मान लीजिए पहली कंडीशन ये है कि अगर ऐसा हो जाए कि if the screening power screening effect is greater than the effective nuclear charge, then what will happen? As we already explained here, if the screening effect means the intervening shells which are present between the nucleus and the valence shell, if their number increases, means their effect increases, and increases in such a way that it becomes dominates over the effective nuclear charge, then what will happen? Then the attraction between the nucleus and the valence electron decreases. So if the screening power dominates over the effective nuclear charge, what will happen? The attraction between the nucleus and the valence electron decreases, and thus we can say that the size will increases. Size will increase. Okay, you can see in that particular diagram also. On moving down the group in group number 1, on moving from lithium to cesium, you can see the on moving from lithium to cesium, or you can say on moving down the group, the electrons are added in the next succeeding shell, means the number of intervening shell increases, means the screening effect increases, and due to increase in screening effect, that screening effect dominates over the nuclear charge. On that basis, the attraction between the nucleus and valence shell decreases and the size increases. Okay, you can write like that. Next factor is the screening power. If the screening power dominates over the effective nuclear charge, अगर स्क्रीनिंग पावर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डोमिनेट हो जाए तो क्या होगा? तो अगर जो अब वो तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया था, ये यहाँ पे साइन हमने थोड़ा रिवर्स लिखना था, यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा, तो आप इसे लेस देन कर दें यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर। तो ये गलती से यहाँ पे हमने मैंने ये करेक्ट कर दिया है यहाँ पे कि इफ द नाउ द सेकंड फैक्टर इज इफ द स्क्रीनिंग पावर इज लेस देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन अदर वर्ड, if the effective nuclear charge is greater than screening power, means इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाए स्क्रीनिंग पावर के ऊपर। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। तो फिर होगा क्या? इफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स ओवर द स्क्रीनिंग पावर, देन व्हाट विल हैपन? देन द अट्रैक्शन then the attraction between the nucleus and the valence shell electron increases, and due to increase in interaction, the valence shell come closer to the nucleus, means the size will decrease, तो size आपका घट जाएगा, right? So these are the two main factor which combinedly their resultant tell us whether the size will increase or the size will decrease। तो इन दोनों फैक्टर को हमेशा ही किसी भी क्वेश्चन का जब आप जवाब देंगे, डाउन द ग्रुप दें पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट दें, तो हमेशा इन दोनों फैक्टर को आपको यूज जरूर करना है आपके आंसर के अंदर, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ओके, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो हेयर अबाउट दैट सेकेंड पॉइंट। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, means from boron to carbon to nitrogen to oxygen to fluorine to neon, you can see here the electrons are added in the same valence 2p subshell, means the number of intervening shell remains the same, means screening effect remains the same, but effective nuclear charge increases and dominates over the screening effect. Because of that reason, the attraction between the nucleus and valence shell electron increases। मतलब जब हम बोरॉन से, कार्बन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ चलते हैं, तो हर बार जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल उसी 2p सब शेल में एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से जो बीच की इंटरवेनिंग शेल हैं उनकी संख्या सेम रही, और सेम रहने का मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहा, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है +5 +6 +7 +8 +9, ये तो बढ़ ही रहा है, और अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट कर गया, जिसकी वजह से देखो अट्रैक्शन आपकी बढ़ती जा रही है। आप देखें हमने डायग्राम में भी शो कर रखा है, जो डिस्टेंस देखो यहाँ ज्यादा है, फिर देखो कम किया और कम किया और कम किया, और यहाँ पे हमने और भी कम करते हुए डायग्राम भी आप एग्जैक्टली बनाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज द पेनिट्रेशन पावर। हमने पहले ही पढ़ा था कि किसी भी ऑर्बिटल्स की जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाने की जो पावर होती है उसे आप क्या कहते हैं? उसकी पेनिट्रेशन पावर। तो व्हाट इज द पेनिट्रेशन पावर? द एक्सटेंट टू विच ए पार्टिकुलर ऑर्बिटल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस या बाय द न्यूक्लियस कॉल्ड एज देयर पेनिट्रेशन पावर। और हम ये जानते हैं कि जो आपकी एस सबशेल होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, वो स्प्रेडेड नहीं होता। तो ड्यू टू द स्फेरिकल nature of the s orbital, and it is present much more nearer to the nucleus, because of that reason the penetration power of s orbital is much more greater than that of the p, d और the f। f सबसे ज्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं, वो स्फेरिकल नहीं होते और वो न्यूक्लियस के नजदीक भी नहीं होते, इसीलिए उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है।
So that is the very common point that will be used in next coming properties. Okay. So now we move towards our main questions, main trend question. ये अभी हमने पढ़े भी थे कि पहला क्वेश्चन अब आया आपके सामने कि द एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, जैसे अभी हमने देखा था। तो रीजन बड़ा सिंपल था कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड in the same subshell, in the same subshell which do not screen each other, means screening effect almost remains same। लेकिन स्लेटर्स ने तो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में भी एंटर करते हैं वो भी एक दूसरे के लिए स्क्रीन करते हैं। मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि हम उस पर्टिकुलर स्लेटर रूल्स वाली उस बात को यहाँ पे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन देते वक्त हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ऑलमोस्ट एक दूसरे को स्क्रीन नहीं करते, लेकिन वो करते हैं, उनका कुछ स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है। हमने स्लेटर्स रूल के दौरान पढ़ा था, लेकिन इन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में हम उनको नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं अपनी इस पार्टिकुलर रीजनिंग को देते वक्त। ओके, सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल एज यू ऑलरेडी सीन इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम, ऑन मूविंग फ्रॉम बोरॉन टू कार्बन टू नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, you can see on moving left to right the electrons are added in the same subshell which do not screen each other, that screening effect remains same, or you can say the number of intervening shell here remains same, on that basis the screening effect remains same। Okay, but the effective nuclear charge increases, +5 +6 +7 +8 +9, effective nuclear charge increases and dominates over the screening effect, and because of that reason the attraction between the nucleus and the valence shell electron increases, and you can easily observe in that particular diagram, means the and size goes on decreasing on moving left to right in the periodic table। So in that proper way you will give the response of that question by drawing that particular diagram। Okay, now the next important question is for the group. So I mean atomic size, that's the general trend. There are some exception also, we will see in the next slide। The atomic size generally goes on increasing on moving down the group in the periodic table, explain it। So for that we first of all we write their configuration here of the group 1 or the group 2। in group 1 the elements are hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium। हम डायरेक्टली यहाँ पे वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ही लिख देंगे। सिमिलरली ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। कॉन्फ़िगरेशन अब हम लिखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की 1s1, तो वैलेंस लिथियम की क्या बन जाएगी 2s1, 3s1 फॉर सोडियम, 4s1 फॉर द पोटाशियम, 5s1 फॉर रुबिडियम, 6s1 फॉर द सीजियम एंड 7s1 फॉर द फ्रेंशियम। ओके, सिमिलरली फॉर द बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2s2 is the valence one for the beryllium, 3s2 for magnesium, 4s2 for calcium, 5s2 for strontium, 6s2 for barium, and 7s2 for the radium। Okay, means there are a number of shells goes on increasing, the electrons goes on adding on moving down the group, the last electron goes on ending in the next succeeding shell। Okay, the last electron in case of the hydrogen for example present in the 1s1, the last electron in case of the lithium present in 2s1, the last electron in case of sodium present in the 3s1, like that। Okay, so what we can say here, on moving down the group in whether in group 1 or group 2, you can see here the electrons are added in the next succeeding shell, 1s2, 2s2, 3s1, and like that steps, right? Okay, so electrons are added in the next succeeding shell, because of that region what will happen here, you can see in diagram here also, on moving from hydrogen to lithium you can easily see in between the nucleus and valence shell there is no intervening shell, in between the nucleus and valence shell there is one intervening shell। in case of lithium you can see that here 1s2, 2s1, because of that region the electrons are goes on adding in the next succeeding shell, here 1s1, other last electron in the 2s1, because of that region the number of intervening shell goes on increasing। अगर हम और भी डायग्राम ड्रा करें नीचे तो आप ऐसा ही देख पाएंगे। So what will happen, due to the increase in the number of intervening shell the screening effect increases, and screening effect increases in such a way that it dominates over the increased effective nuclear charge। हमने increased effective nuclear charge यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि atomic number भी increase हो रहा है। तो what will happen here, how will you write there, you will write these electronic configuration, you will draw that particular diagram, and after that you will write that these statements, means on moving down the group the electrons are added in the next succeeding shell, and the screening effect increases and dominates over the increased effective nuclear charge।
and because of that region, now the attraction in case of hydrogen here, the attraction between the nucleus and valence electron is more, while the attraction in case of lithium, the attraction between the nucleus and valence electron is somewhat less due to that particular intervening shell or these electrons. The attraction decreases. So that's why we have written here the attraction between the valence electron and the nucleus decreases, and hence the size increases on moving down the group. So that's our next question. Now the next important question is, हमने पहले पढ़ा कि जो हमारे डिफरेंट जो एटम हैं एलिमेंट्स के ग्रुप 18 को छोड़ के, वो भी ग्रुप 18 की तरह ग्रुप 18 लाइक कॉन्जुगेशन को अचीव करना चाहते हैं, फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन अचीव करना चाहते हैं। तो उसको अचीव करने के लिए वो करते क्या है, वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, दो एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं, दो एटम आपस में अनइक्वल शेयरिंग कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, दो एटम आपस के अंदर यानी क्या कर सकते हैं, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मींस कैटायन बन जाएगा, दूसरा एटम प्रेजेंट होना चाहिए जो उसी लूज के इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, वो एनायन बन जाएगा। मींस जो ये जो स्पीसी बनती हैं ये किस लिए बनती हैं, ऐसा क्यों हो पाया, स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, ग्रुप 18 जैसी फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन को अचीव करने के लिए ऐसा होता है। तो मीन्स हमारा जो पहला क्वेश्चन ये है कि जो कैटायन है, कैटायन, कैटायन कौन, द स्पीसी विच इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज द कैटायन, आप उसे कैटायन कहते हैं। जैसे कि मेटल्स के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते, वो फ्री हो जाते हैं, वो उनकी वैलेंस शेल के एक वैलेंस शेल से क्रिस्टल लैटिस के अंदर दूसरे की वैलेंस शेल में चले जाते हैं। तो जो पार्ट होता है आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ द मेटल्स, दैट कॉल्ड एज द कर्नल हेयर, उसे आप कर्नल कहते हैं। क्लियर हो गया, इसे आप यहाँ पे कैटायन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वो कंप्लीट लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन दूसरी जो स्पीसी है वो उसको गेन कर लेती है और आप उसे फिर एनायन कह देते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कैटायन और कर्नल के बीच डिफरेंस क्या होता है। मेटेलिक लैटिस के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर हम छोड़ दें तो बचा हुआ जो पार्ट होता है उस एटम का, उसे कर्नल कहते हैं। तो कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में हमेशा अट्रैक्शन रहती है, और वो अट्रैक्शन उस कर्नल और उसी के इलेक्ट्रॉन के बीच नहीं रहती, जो उसका पड़ोसी एटम का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके बीच भी उस कर्नल की अट्रैक्शन रहती है। इसलिए हम कहते थे कि मेटेलिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि एक कर्नल साइमल्टेनियसली एडजेसेंट एटम्स के फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी अट्रैक्टेड रहता है। इसलिए मेटेलिक बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। तो अब हम कंसंट्रेट करते हैं अपने इसी पॉइंट के ऊपर कि द साइज, व्हाई द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द न्यूट्रल एटम। हमने अभी आपको बताया था जब कभी भी आप साइज की बात करें तो आप उन दो फैक्टर को ना भूलें। वो दो फैक्टर क्या थे, स्क्रीनिंग इफेक्ट था, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की पावर हमें देखनी होती है, तो हम देखेंगे क्या, देखें व्हाई साइज ऑफ द कैटायन इज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। ऐसा होता क्यों है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो स्पीसी बची जिसे आप कैटायन कहते हैं उसका साइज छोटा क्यों हो जाता है। तो वो छोटा इसलिए हो जाता है, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कि आप पहले डायग्राम देखें फिर हम स्टेटमेंट को देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने सोडियम ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि 11 एटॉमिक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 रह गए और 10 नियोन जैसे हो गए, ग्रुप 18 जैसे हो गए, और ये फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्जुगेशन हो गई और ये स्टेबलाइज हो गया। ओके, सो आप देख सकते हैं कि सोडियम के अंदर पहले एटॉमिक नंबर 11 था, तो चार्ज कितना था, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर 11 ही तो थे ना प्रोटॉन, तो प्लस 11, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो माइनस चार्ज होता है, तो प्लस 11 माइनस 11 मींस न्यूट्रल हो गया ना न्यूट्रल। तो एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस किया तो फिर क्या हुआ, आप सोडियम ने प्लस में देखें, प्रोटॉन तो उतने ही हैं प्लस 11, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो माइनस 11 हो गया यहाँ पे, तो एक आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ गया। तो अब हम क्या कहेंगे, हम निकाल लेंगे यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 11 है। देखो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस 11। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा पर इलेक्ट्रॉन, मींस 11 अपॉन 11 मींस 1। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे Na प्लस में तो 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन कर रहे हैं, 11 प्रोटॉन कर रहे हैं। ओके, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग अट्रैक्टेड इन कंपैरिजन विद द 11 प्रोटॉन्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा, 11/10 दैट इज 1.1 मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मतलब न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई। पहले जो न्यूक्लियस था, जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जहां पे 11 प्रोटॉन थे, वो 11 प्रोटॉन को पहले 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ रहा था। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अब वही 11 प्रोटॉन को सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना
पड़ रहा है, तो वो जो 11 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन को तो मोर इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। ज्यादा अट्रैक्ट करने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उनकी जो पावर है बचे हुए इलेक्ट्रॉन के प्रति बढ़ गई, क्योंकि वो तो 11 ही रहे, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 10 हैं। तो ये जो पावर है न्यूक्लियस की ताकत जो है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, वो इंक्रीज हो गई। उसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ओके, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस हियर, सो द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड द साइज विल डिक्रीज। तो इसीलिए साइज यहाँ पे डिक्रीज हो गया, Na प्लस का साइज छोटा हो गया। तो विद द, अब स्टेटमेंट आप देखें, विद द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया फ्रॉम द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के अंदर से, इस न्यूट्रल एटम के अंदर से, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन पहले 1 था, वो 1.1 हो गया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड thus the attraction between the nucleus and the valence electron, the remaining electrons, that the valence position there, the increases, so the size will decrease, and hence we can say that the size of the cation is smaller than the neutral atom। इसलिए Na पॉजिटिव का साइज Na से छोटा होता है। एग्जाम में ये ना कहे कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, why the size of Na पॉजिटिव आयन is smaller than the Na neutral atom, ऐसा भी आ सकता है। की बजाय सिंपल डायरेक्ट स्टेटमेंट आए, why size of the cation is smaller than that of the neutral atom। कैसे भी आए, डायरेक्ट अगर ये सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में आए तो भी आपको एग्जांपल लेना है। अगर इसका नाम लेके आ जाता है Na पॉजिटिव का साइज छोटा होता है Na से, तो एक्सप्लेन करें, तो भी आपको ये सेम डायग्राम, सेम बातें यहाँ पे ऐसे ही लिखनी है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे एनायन के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एनायन कैसे बनते हैं, जो कैटायन बनेगा तो एनायन भी साथ के साथ जरूर बनेगा, अकेला कैटायन नहीं बन सकता, अकेला एनायन नहीं बन सकता, क्योंकि जो ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोसेस होती है ये पैरेलल चलती है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के बिना अधूरी है। मींस जिसे आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। तो जब Na इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो कोई दूसरी स्पीसीज उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। जो आपने अभी पिछले डायग्राम में देखा, जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस्ट हो गया, इसको गेन करेगा कौन? इसको गेन करेगी कोई दूसरी स्पीसी, वो कौन, वो अभी आप देख पाएंगे। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। So the fluorine atom whose atomic number is 9 will gain that extra electron which was lost by that particular Na, जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था, और ये F नेगेटिव बन जाता है। मतलब 9 इलेक्ट्रॉन पहले थे, एक और हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नाउ द 10 here like that of the neon, means fulfilled stable conjugation will be achieved by that F negative ion, because of that particular यानी प्रोसेस takes place, means इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो अब आप देखेंगे फ्लोरीन के अंदर पहले प्रोटॉन कितने थे। फ्लोरीन के अंदर प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 9 है, तो +9 चार्ज, इलेक्ट्रॉन 9 तो -9 चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद F नेगेटिव में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो प्रोटॉन्स आपके रहेंगे वही 9। तो आप ये थोड़ी यहाँ पे करेक्शन कर लें, हमने यहाँ पे ये गलती से +11 पुराने वाला लिखा रह गया, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ये करेक्ट कर दिया है, जो प्रोटॉन्स थे वो तो उतने ही रहे सेम, देखो +9, और इलेक्ट्रॉन अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिया, F नेगेटिव जो बना है, तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 10 हो गए। सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन नाउ विल बी द 9 divided by 10 means 0.9, means effective nuclear charge per electron decreases। why decreases? आप देखो ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहले क्या था, बीच में देखो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस जिसमें +9 चार्ज है, पहले उसको होल्ड करना पड़ रहा था 9 इलेक्ट्रॉन्स को ही, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद आपका पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस की पावर तो उतनी ही रही +9, लेकिन अब उसको होल्ड करना पड़ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स को। सो इट इज नॉट इजी टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द 9 इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल केस। तो अब ये जो +9 चार्ज है, ये अब 10 इलेक्ट्रॉन को उतनी स्ट्रॉन्गली हेल्ड नहीं कर पाएगा, अट्रैक्शन थोड़ी लूज हो जाएगी, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन आपका डिक्रीज हो गया। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर स्टेटमेंट के अंदर, विद द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द न्यूट्रल एटम the effective nuclear charge per electron decreases। So due to decrease in that effective nuclear charge per electron, what will happen, the attraction between the nucleus and the valence shell electron decreases, so the size will increase। hence we can say that the size of the anion is larger than that of the neutral atom। इसलिए एनायन का साइज न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। एग्जाम में ये सिंपल स्टेटमेंट की बजाय ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, why the size of F negative ion is greater than the F atom, या why, अगर हम क्लोरीन ले लेते तो why the size of Cl negative is greater than the
क्लोरीन एटम, मान लीजिए हम क्लोरीन लेते तो क्या होता, उसका एटॉमिक नंबर 17 आप लिखते हैं, यहाँ पे +17 -17, आगे +17 -18 आप कर देते। तो मीन्स आपकी जो स्टेटमेंट है वो तो वही रहेगी, आपका एग्जाम्पल बदल सकता है। अगर एग्जाम में, क्योंकि मैंने ऐसा आपको अभी इसलिए बताया कि एग्जाम में ये ना कहे कि वाई द साइज ऑफ एफ नेगेटिव आयन इज ग्रेटर देन एफ एटम, की बजाय ऐसा भी तो आ सकता था कि वाई द साइज ऑफ Cl नेगेटिव आयन इज ग्रेटर देन द Cl एटम, इसलिए मैंने थोड़ा आपको Cl के बारे में यहाँ पे बता दिया। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाई द साइज ऑफ एन आयन इज लार्जर देन दैट ऑफ द न्यूट्रल एटम। ओके, अब हम देखेंगे अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना। इसमें ये है कि हमारे जो ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स होते हैं अगर वो सिंपल होते, सिंपल फॉर्म के अंदर, आयनिक फॉर्म में ना होते, एक्वस फॉर्म के अंदर ना होते, तो बड़ा सिंपल ट्रेंड था जो हमने अभी पहले देख लिया कि द साइज गोस ऑन इंक्रीजिंग, और वो इंक्रीज भी होता है। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब हमने जो ये दोबारा से यहाँ पे कॉन्केशन लिखी, आप देख पा रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने से साइज हमेशा इंक्रीज होता ही है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने से जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो नेक्स्ट सक्सीडिंग शेल में एंटर करता है, नंबर ऑफ इंटरवेनिंग शेल बढ़ जाती है, इसीलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डोमिनेट करता है, इसलिए न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होने से साइज बढ़ जाता है। ओके, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आपके Li पॉजिटिव आयन की, लिथियम पॉजिटिव आयन की, सोडियम पॉजिटिव आयन की, के पॉजिटिव आयन की, और वो भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो होता क्या है, क्योंकि जो आपका Li पॉजिटिव आयन है, देखो ये Li पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसका छोटा साइज है, इसकी हाई चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी का, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, so that called as the density. So it has the high charge density, small size, high charge density, and due to that high charge electron density, the lithium ion get heavily been hydrated means ये water molecule को ज्यादा अपने चारों तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। now that is the net size, now that is the final size of the lithium, देखो वाटर के समेत, along with water, now that called the, because there is attraction, these water molecule been attracted become the part of that Li positive ion, तो जिसकी वजह से now that is the size of Li positive aqueous, that the complete size, now that complete size is greater than, you can see the below is the size of the cesium, देखो without that attraction, without these water molecule, the size of lithium is देखो smaller and the size of the cesium atom is larger in size। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ऐसा है। लेकिन अगर हम Li पॉजिटिव और Cgm पॉजिटिव की बात करें, ये वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो Li पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक लॉस करने के बाद जो Cgm पॉजिटिव बनेगा, और फिर हम इनको जब वाटर के अंदर डाल दें तो होगा क्या, ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो साइज इंक्रीज हो जाता है, साइज क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो वाटर को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जिसका साइज छोटा है, Li पॉजिटिव आयन का छोटा साइज है, हाई चार्ज डेंसिटी है, तो ये लिथियम आयन गेट हेवीली हाइड्रेटेड, जैसे मैंने बताया, एंड दैट टेंडेंसी टू गेट हाइड्रेटेड गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, while due to the large size and low charge density, the Cgm positive ion do not get hydrated, do not get heavily hydrated, or in other way you can say कि on moving from Li positive ion to Cgm positive ion, the tendency, the size increases and the charge density decreases, and because of that reason the tendency to get hydrated decreases। Okay, on that way, the size of Li positive ion now becomes greater than that of the E1 of the Cgm one. Cgm से भी उसका बड़ा हो जाता है। So the Li positive ion has the largest size and the Cgm positive ion has the smallest size। तो ये क्वेश्चन कई बार एक्वस फॉर्म वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, और इसका जवाब आप कुछ इसी तरीके से देंगे, और इसी तरीके से आप डायग्राम भी ड्रा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके ग्रुप नंबर 13 से रिलेटेड, जहां पे हम देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया जा चुका है कि किसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की है, ताकि उन बातों को ध्यान रखते हुए आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चनों को, जहां पे कुछ एनामलस बिहेवियर दिखता, आप उसको एक्सप्लेन कर पाए, आप उसको समझ पाए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो ग्रुप नंबर जो 13 है उसमें जब हम देखेंगे तो जो साइज का जो ट्रेंड है, वैसे तो जो साइज है आपके बोरॉन से, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, देखो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, अब हम लिखेंगे बोरॉन से, एल्यूमिनियम से, गैलियम से, इंडियम से, थैलियम की तरफ हम जाते हैं तो साइज तो इंक्रीज होना ही चाहिए, और मूविंग डाउन द ग्रुप साइज मस्ट इंक्रीज, क्योंकि अभी हमने जनरल ट्रेंड देखा था। लेकिन कुछ एनामलस बिहेवियर यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, वो क्या है, वही तो हमारा क्वेश्चन है
क्या देखा गया, पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, फिर उस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोरोन की, 1s2 2s2 2p1। अब वैलेंस को ही हम इंक्रीज कर देंगे, 3s2 3p1 4s2 4p1। लेकिन अब क्वेश्चन ये आया, 4s2 4p1 से पहले हमने 3d क्यों लिखा। हम कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हम सिखा चुके थे कि एल्यूमिनियम के अंदर 3s2 3p1, यहाँ पे 3d वैकेंट है, वो फुलफिल्ड हो गया, इसलिए 3d आ गया। मतलब गैलियम के अंदर आपके अंदर की तरफ जो इंटरवेनिंग शेल होती है वहां पे एक 3d भी होता है, जो कि बोरॉन एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं होता। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर, जिसके बेसिस के ऊपर हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें कि आपके गैलियम में 4p आ गया, तो 4d 4f भी होता है, तो इसलिए आप देख पाएंगे यहाँ पे इंडियम के अंदर 4d भी आ गया। उसके बाद जो स्क्रीनिंग जो पावर होती है 3D 4D की, उसमें भी कंपैरिजन किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट थैलियम में देखेंगे, तो यहाँ पे क्योंकि 4 अपने गैलियम में देखा था 4p का, 4D 4f था, 4D तो यहाँ पे फुलफिल्ड हो गया। अब उसके बाद 4f भी देखो आ गया, 5 S5p इंडियम में था तो 5d था, तो 5d भी आ गया। आपने क्या देखा, थेलियम के अंदर 5d भी आ गया, 4f भी आ गया, 4f आ गया मेनली यहाँ पे जो हम बात बता रहे हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ऑन दैट बेसिस हम इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना जरूरी था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको ये कुछ बातें बताई थी, तो इन्हें आपको अब भी ध्यान रखना ही होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि अमंग द ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स, among the group number 13 elements the size increases on moving from boron to aluminum। देखो जब हम बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ जाएंगे तो साइज आपका इंक्रीज हो जाता है। तो वो इंक्रीज क्यों हो जाता है वो तो हमने पढ़ ही लिया था कि द ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द नेक्स्ट सक्सीडिंग शेल। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकंड थी, यहाँ पे थर्ड शेल है, सो नंबर ऑफ इंटरवेनिंग शेल इंक्रीजेस, so screening factor dominates over the effective nuclear charge, so attraction decreases, so size increases, so that's the basic way। तो ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि जो साइज है वो आपका क्यों इंक्रीज होता है। लेकिन आगे आप पढ़े, एंड देन डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ गए तो गैलियम का साइज थोड़ा डिक्रीज हो गया, ऐसा क्यों हुआ ये हमें देखना है। तो देखो आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे हम गैलियम में गए यहाँ पे डी आ गया, जिसकी जो स्क्रीनिंग जो इफेक्ट होता है वो कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे अंदर कौन थे बोलो, 1s2 2s2 2p6s और p ही थे, यहाँ पे तो d आ गया, जस्ट इनर टू दैट वैलेंस एरिया आपका d है, जिसकी स्क्रीनिंग पावर कम होती है। स्क्रीनिंग पावर कम होने से दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, और जिसकी वजह से साइज थोड़ा डिक्रीज हो गया। क्लियर हो गया। तो ये जो कुछ हुआ वो किस वजह से हुआ, दैट ड्यू टू दैट पर्टिकुलर 3D जिसकी स्क्रीनिंग पावर कम होती है, ये हमने पहले पढ़ लिया था, और जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो गए, और जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो गया। तो ये तो हमारा इस क्वेश्चन का हम इस टाइप से जवाब देने वाले हैं कि एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हैं तो साइज क्यों आपका डिक्रीज हो जाता है, एंड देन अगेन इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम गैलियम टू इंडियम एंड देन टू थैलियम। क्योंकि हुआ क्या यहाँ पे कि आपके इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो फिर उसके बाद नंबर ऑफ इंटरवेनिंग शेल फिर से इंक्रीज हो जाती हैं। आपके जो नंबर ऑफ शेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से जो इफेक्ट अभी जस्ट हमने यहाँ पे देखा था वो इफेक्ट इतना रह नहीं पाता। आपके ऐसी बात नहीं कि जहां पे डी आ गया उसकी भी तो स्क्रीनिंग पावर कम है, अट्रैक्शन होगी, लेकिन नंबर ऑफ इंटरवेनिंग शेल भी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो थोड़ा डोमिनेट कर जाता है। स्क्रीनिंग पावर ठीक है कम है, उसमें डी भी आएगा अंदर, और ये 4D भी आ गया, 3D भी है अंदर, तो जिसकी वजह से ओवरऑल स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, इसलिए अट्रैक्शन थोड़ी कम हो पाती है, और इसलिए साइज थोड़ा सा इंक्रीज आपका होगा ही। थैलियम के अंदर भी एफ आ गया, जिसकी स्क्रीनिंग पावर कम है, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि आपके ओवरऑल नंबर ऑफ इंटरवेनिंग शेल ज्यादा बढ़ गई, इसलिए साइज इंक्रीज होगा ही। वो एक अलग बात के साइज उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा जितना कि होना चाहिए था। ये जरूर बात हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो एल्यूमिनियम से गैलियम में गए तो एकदम से पहली बार डी आया था, जिसकी वीक स्क्रीनिंग पावर थी, और इतनी ज्यादा इंटरवेनिंग शेल भी नहीं है अंदर, क्योंकि ये इतना बड़ा एटम भी नहीं था, यानी इतनी ज्यादा इंटरवेनिंग शेल आई नहीं थी। बोरोन एलियम के बाद जस्ट ही तो गैलियम आता है, तो इंटरवेनिंग शेल उतनी ज्यादा थी नहीं, लेकिन डी आ गया यहाँ पे 3D, और जिसकी स्क्रीनिंग पावर कम है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गए, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो गया। लेकिन और डाउन द ग्रुप आप नीचे जाते हैं तो इंटरवेनिंग शेल्स बढ़ जाती हैं, आपके डी और एफ भी आ गए, जिसकी वीक स्क्रीनिंग पावर है, तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, स्क्रीन पावर भी बढ़ेगी, लेकिन इन दोनों का काउंटर बैलेंस ऐसा होगा कि साइज जितना बढ़ना चाहिए
जितना ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए उतना ज्यादा अब इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज तो हो जाएगा इंटरवेनिंग शेल बढ़ने की वजह से, लेकिन उतना ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? उतना ज्यादा इंक्रीज इन वजह से नहीं हुआ क्योंकि इनके अंदर भी डी और एफ आ जाते हैं जिनकी वीक स्क्रीनिंग पावर होती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन थोड़ी बढ़ जाती है। अट्रैक्शन भी बढ़ गई, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ गया। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से साइज ज्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा कम बढ़ा क्योंकि वीक स्क्रीनिंग पावर ऑफ डी और एफ आ गए यहाँ पे इंडियम थैलियम के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ी अट्रैक्शन भी साथ के साथ आ गई। साइज बढ़ा लेकिन थोड़ा कम। तो अब हम देख पाएंगे इनको वन बाय वन। तो मींस ऑन मूविंग फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम हमने क्या डिस्कस किया? द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द शेल बिकॉज इट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द नेक्स्ट सक्सीडिंग शेल, सो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, so the attraction between the nucleus and valence shell electron increases, और जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है बोलो आपका, सॉरी, द अट्रैक्शन डिक्रीजेस सो द साइज विल इंक्रीज। क्लियर हो गया? तो बोरॉन सेलेनियम की तरफ गए हम तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका बढ़ गया, अट्रैक्शन आपकी घट गई, और जिसकी वजह से साइज थोड़ा बढ़ गया बोरॉन से एल्यूमिनियम तक जाने में। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं तो क्या हुआ? जो अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच वो क्या हो गई? इंक्रीज। द अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस ड्यू टू द लो स्क्रीनिंग पावर ऑफ द इंटरवेनिंग डी सबशेल, 3D है यहाँ पे, ऑफ द गैलियम, सो द साइज डिक्रीजेस, थोड़ा सा आपका डिक्रीज हो जाता है। तो एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ गए तो साइज क्या हो गया? डिक्रीज। तो इसीलिए हम ट्रेंड भी देखेंगे कि बोरॉन से थोड़ा सा बड़ा साइज गैलियम का होता है। ठीक हो गया ना? और गैलियम से थोड़ा बड़ा एल्यूमिनियम का होता है क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा हो चुका है। उसके बाद दोबारा से जब हम गैलियम से इंडियम की तरफ गए तो क्या हुआ? size again increase on moving from gallium to thallium due to increase of the screening effect, screening effect फिर से बढ़ गया, so the attraction आपकी फिर से घट गई, the attraction between the nucleus valence electron decreases, so the size again increases, but that increase is not so much large। कोई आपसे पूछे उतना ज्यादा क्यों नहीं है तो आप फिर यही रीजन देंगे, because in indium and thallium, in indium there is 4D and in thallium there is 4D and 4F and they have weak screening power, so in attraction is something increases, due to that something increase in interaction attraction, the increase in size is not so much large। okay, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए जो हमारा ट्रेंड रहा ग्रुप नंबर 13 का, देखो यहाँ पे चेंज आ गया। वैसे गैलियम की पोजीशन तो यहाँ पे थी, बोरॉन साइज इज लेस देन एल्यूमिनियम आना चाहिए, लेकिन बोरॉन साइज इज लेस देन गैलियम, गैलियम साइज इज लेस देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम साइज इज लेस देन इंडियम, साइज इज लेस देन थैलियम। सो दैट्स द ट्रेंड हियर, ये इसका ट्रेंड है। क्लियर हो गया बेटा? तो इस तरह से आप इस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। नाउ द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ग्रुप नंबर 14, लेकिन जब हम ग्रुप 13 से 14 की तरफ जाते हैं तो वो उतनी ज्यादा एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं आता कि साइज डिक्रीज हो जाता है। साइज इंक्रीज ही होगा लेकिन इंक्रीज उतना ज्यादा नहीं हो पाया जैसे मैंने आपको बताया, तो रीजनिंग हमें उसी टाइप की देनी है। तो ग्रुप नंबर 14 में आपने क्या देखा? देखो आप बड़े ध्यान से देखे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो कार्बन का जो साइज था आपका, देखो देयर इज ए मोर इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। कार्बन से सिलिकॉन की तरफ गए, देखो ज्यादा इंक्रीज है साइज में, लेकिन सिलिकॉन से जर्मेनियम की तरफ गए देयर इज लेस इंक्रीज इन साइज। फिर जर्मेनियम से टिन की तरफ गए देयर इज लेस इंक्रीज इन साइज, साइज तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन लेस इंक्रीज। और टिन से लेड की तरफ गए, वेरी लेस इंक्रीज इन साइज, क्योंकि आपने देखा था अभी हम कि वहां पे आपका एफ सब शेल भी आ जाती है जिसकी स्क्रीनिंग पावर कम होती है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंक्रीज उतना नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। तो आप ग्रुप नंबर 14 की कॉन्ग्रेगेशन देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। वैलेंस शेल हमने लिखा 1s2 2s2 2p2, नेक्स्ट में 3s2 3p2। अब जर्मेनियम में जैसे आप देखते हैं, देखो अभी तक कोई डी नहीं आया, इंटरवेनिंग डी नहीं आया, तो जिसकी वजह से आपके कार्बन से सिलिकॉन की तरफ जब हमने मूव किया तो आपकी इंटरवेनिंग शेल्स बढ़ गई, और लेकिन इंटरवेनिंग शेल में कोई भी डी सब शेल नहीं है, तो जिसकी वजह से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका बढ़ता चला गया, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा तो अट्रैक्शन घट गई और साइज आपका लार्ज इंक्रीज हुआ। देखो यहाँ पे कार्बन से सिलिकॉन के अंदर लार्ज इंक्रीज इन साइज। लेकिन जैसे ही हम सिलिकॉन से जर्मेनियम की तरफ देखो जाते हैं, यहाँ पे इंटरवेनिंग डी सब शेल आ गई जिसकी स्क्रीनिंग पावर कम है, और अट्रैक्शन बढ़ गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस की तरफ। अट्रैक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि साइज जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, देखो कम बढ़ा। जबकि आपने ग्रुप 13 में देखा था कि इस इंटरवेनिंग डी सब शेल की वजह से ऐसी इंटरेक्शन बढ़ गई थी वहां पे कि आपका जो साइज, बल्कि वहां पे तो बोरोन गैलियम का साइज तो देखो डिक्रीज हो गया था बल्कि इससे भी, लेकिन यहाँ पे जर्मेनियम का साइज सिलिकॉन से कम नहीं हुआ। इस
कि अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से, वीक स्क्रीनिंग पावर ऑफ डी की वजह से अट्रैक्शन बढ़ भी गई, लेकिन बढ़ गई तो साइज जितना बढ़ना था उतना नहीं बढ़ा, थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी सिलिकॉन से तो ज्यादा ही रहा। तो ये आप ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 14। ओके, जब हम चलते हैं आगे ग्रुप जर्मेनियम से टिन की तरफ, साइज फिर से बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ इंटरवेनिंग शेल्स बढ़ गई, लेकिन साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन अब क्योंकि दो दो आपकी शेल आ गई थी, देखो 3D भी है अंदर, 4D भी इंटरवेनिंग शेल बढ़ गई, तो इसलिए साइज आपके एज कंपेयर टू जो सिलिकॉन से जर्मेनियम थोड़ा कम बढ़ा था, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आपका बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरवेनिंग शेल यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो गई। लेकिन जैसे हम टिन से लेड की तरफ गए, आप कॉन्केशन देखें, यहाँ पे 4F आ गई, जिसकी वेरी वेरी वीक स्क्रीनिंग पावर होती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ गई। अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ने की वजह से साइज इंक्रीज तो हुआ, लेकिन बहुत ही कम हुआ, ड्यू टू दैट वीक स्क्रीनिंग पावर ऑफ दी 4F subshell. So these valence electron get strongly attracted towards the nucleus. Due to strong attraction, the increase in size is not so much large. There is very slight increase in size on moving from tin to lead. So now here is the statement, the same thing what I have already explained to you. On moving from carbon to silicon, the attraction between the valence shell electron and nucleus decreases due to the increase in screening effect. So the size increases on moving from carbon to silicon, that increases large here, already explained you. But on moving from silicon to tin, the increase, there is only slight increase, जो अट्रैक्शन उतनी ज्यादा हुई नहीं यहाँ पे। तो हुआ क्या, देर इज ओनली स्लाइट डिक्रीज इन अट्रैक्शन इन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ड्यू टू द वीक स्क्रीनिंग पावर ऑफ द इंटरवेनिंग डी सबशेल। सो देर इज ओनली स्लाइट इंक्रीज इन साइज, आपका साइज थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि इंटरवेनिंग डी सबशेल की वीक स्क्रीनिंग पावर की वजह से जो अट्रैक्शन है उनके बीच, न्यूक्लियस वैलेंस शेल के बीच में थोड़ी सी बढ़ गई, और वो अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे स्लाइट इंक्रीज इन साइज हुआ। लेकिन जैसे ही हम टिन से लेड की तरफ जाते हैं और आगे फर्दर, तो आपने क्या देखा, पहले डी आता फिर एफ आता है, और एफ की स्क्रीनिंग पावर क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी बढ़ गई, और जिसकी अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से स्लाइट इंक्रीज इन साइज हो जाता है। तो ये था अबाउट ग्रुप नंबर 14। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अबाउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन होती है? आइसो मीन्स आप देख पा रहे हैं, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हो। तो द स्पीसीज विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इन सभी को देखें, एफ नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। आप इन सभी में देखें नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है इनका, तो क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है, ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है। ये तो हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि ये इनका एटॉमिक नंबर है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो क्या होगा कि एफ के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से 9 थे इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक और हो गया इलेक्ट्रॉन, तो बोलो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 9 + 1 10 हो गए। सोडियम में देखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे, एक कम हो गया, तो 11 में से 1 गया 10। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 लॉस हो गए, तो कितने हो गए, 10। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 लॉस हो गए, तो रह गए 10। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 गेन कर लिए, देखो 2 नेगेटिव चार्ज है तो 10 हो गए। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 गेन कर लिए, तो देखो 10 हो गए। तो मैं सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन। इन ऑल these species you can see here there are the 10 electrons. Because of that reason we can tell you कि these all are the isoelectronic species. ये सारी की सारी आपकी isoelectronic species हैं। तो isoelectronic species कौन होती हैं? Which contain the same number of electron, whatever be the number of the proton, whatever may be the atomic number, but if the number of electrons are same, then that type of species called as the isoelectronic species. तो आप उन्हें isoelectronic species कहते हैं। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यहाँ पे हो गई, क्लियर हो गया। तो ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इनमें अब हम क्या देखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे, क्योंकि अब हमें इनमें ट्रेंड भी देखना है, साइज का ट्रेंड देखना है, किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है। तो जो साइज का घटना या बढ़ना मैंने पहले बताया था, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस की पावर के ऊपर, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन हमें देखना है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ द एफ नेगेटिव क्या आएगा, 9/10 = 0.9। क्योंकि देखो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कौन कर रहे हैं, दिस 9, तो 1 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कौन करेगा, 9/10। लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ईच ऑफ द स्पीसी। हम हर स्पीसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे।
तो आपने Na पॉजिटिव में देखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कितना 11/10 1.1, Mg2 पॉजिटिव में 12/10 1.2, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो यहाँ पे ज्यादा होगा। एल्यूमिनियम के केस में देखेंगे Al3 पॉजिटिव, आयन के केस में देखेंगे 13/10 1.3, O2 नेगेटिव के केस में 8/10 0.8, N3 नेगेटिव के केस में 7/10 0.7। मीन्स आपने क्या देखा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है पर इलेक्ट्रॉन वो सबसे ज्यादा किस में है, Al3 पॉजिटिव में। देखो आप ध्यान से देखें, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स है, 13 पॉजिटिव चार्ज है और उनको होल्ड करना पड़ रहा है उन्हीं सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ज्यादा पावर से होल्ड कर पाएंगे, वैलेंस शेल को ज्यादा अपनी तरफ अटैक कर पाएंगे, साइज मीन्स डिक्रीज हो जाएगा। तो मीन्स यही हमें देखना था। और सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन किसका है, N3 नेगेटिव है, 0.7 है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज +7 है, ये सिर्फ +7 चार्ज और होल्ड करना पड़ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन्स को। तो नॉट इजी टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स इजिली एज कंपेयर टू इन केस ऑफ द Al3 पॉजिटिव। तो इसीलिए सबसे स्ट्रांगली होल्ड कौन कर पाएगा इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को, ये Al3 पॉजिटिव, क्योंकि वहां पे 13 प्रोटॉन्स हैं। तो मीन्स ज्यादा अट्रैक्शन दे पाएगा उन रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए अट्रैक्शन मीन्स सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, और कम होने का मतलब साइज छोटा हो जाएगा। तो इसलिए एल पॉजिटिव का साइन सबसे छोटा होता है, Al3 पॉजिटिव आयन का साइज सबसे छोटा और N3 पॉजिटिव का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। ओवरऑल अब सिंपली डायरेक्ट याद करें तो कुछ ऐसे करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उस पर दिखे अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसका साइज उतना छोटा होगा, और जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज दिखे उसका साइज उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज means the species containing the same number of electron, means all these in the above example all these species have the 10 electrons each. The more the magnitude of the effective nuclear charge, जितना ज्यादा effective nuclear charge का magnitude होगा, more will be the attraction between the nucleus and valence electron, and smaller will be the size, और size उतना ही छोटा होगा। On that basis the trend, the order of the size will be N3 negative is great का जो साइज है वो सबसे बड़ा होगा, N3 नेगेटिव, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव चार्ज सबसे बड़ा साइज, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज सबसे छोटा साइज। सो दैट विल बी द ट्रेंड। N3 नेगेटिव आयन साइज इज ग्रेटर देन O2 नेगेटिव आयन साइज is greater than F negative, F negative is greater than Na positive, Na positive is greater than Mg2 positive, and Mg2 positive size is greater than Al3 positive ion size. Okay, so in that way we can explain the order of size among the isoelectronic species by observing the effective nuclear charge per electron. Isoelectronic species में आपको effective nuclear charge per electron आपको calculate determine करना ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा अगला कॉन्सेप्ट पोलिंग कॉन्सेप्ट। पोलिंग कॉन्सेप्ट को अब हम देखने वाले हैं। Now our next point is about the determination of the size. So the next point is polling concept. Now we will study about the polling concept for the determination of the ionic radius of the cation or the anion for the isoelectronic species. Condition here will be the isoelectronic species, कि वो isoelectronic species हो। पहले अब हम उस चीज को अब हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें हमें करना क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। अभी हमने देखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ले लेंगे तो इट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपके सेम है। तो अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन के अंदर के जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं उनमें साइज का ट्रेंड देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, हमें वहां पे देखना पड़ता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हमने ऊपर हेडिंग में लिखा है वी आर यूजिंग हियर द पोलिंग कॉन्सेप्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द आयनिक रेडियस ऑफ द कैटायन और द एनायन फॉर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो मीन्स फॉर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मोर विल द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, मीन्स जेड इफेक्टिव की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो साइज उतना छोटा होगा, मतलब रेडियस उतना ही छोटा होगा। वही अब हमने यहाँ पे लिखा है कि द रेडियस ऑफ एनी ऑफ द एनायन वेदर इज द कैटायन और द एनायन फॉर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। वो हमने देखा भी कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में उसका साइज उतना बड़ा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर। तो सिंपली हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा, जो रेडियस उतना ही छोटा होगा, मतलब साइज उतना छोटा होगा। Okay, so that's the way here we have written here the R ion radius of the ion is inversely proportional to the Z effective.
सो व्हाट हाउ कैन वी कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव? हमने स्लेटर्स रूल पढ़े थे, उसके दौरान हमने देखा था कि हम जेड इफेक्टिव को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जेड इफेक्टिव कैसे हमने कैलकुलेट किया था, जिसमें हमने देखा था जो एटॉमिक नंबर था उसका एक्चुअल जो न्यूक्लियर चार्ज था उसमें से माइनस हमने क्या किया था, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट जिसे आप कह सकते हैं, वो हम पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको निकालना सिखा चुके हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप पीछे देख लेना, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटा दें तो यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट लगा देंगे जो c है, दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड दैट पर्टिकुलर c हैज द सेम वैल्यू फॉर बोथ ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी जो भी होंगी उनके अंदर वो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे, डिटरमाइन करेंगे आयनिक रेडियस कैटायन और एनायन का इन केस ऑफ द सोडियम फ्लोराइड। मान लीजिए हमने सोडियम फ्लोराइड ले लिया और एक्सरे डिटेक्शन जो टेक्निक है उसके द्वारा हमने ये निकाला, क्या निकाला कि द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया इसके न्यूक्लियाई के बीच में, Na पॉजिटिव और F नेगेटिव के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, कितना है एक्सरे टेक्निक के द्वारा वो आ गया। बोलो कितना, 2.31 एंगस्ट्रॉन। ये रोज का साइन नहीं, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये आप ध्यान रखेंगे, 2.31 एंगस्ट्रॉन। ओके, सो दैट इज द 2.31 एंगस्ट्रॉन, ये तो आ गया। लेकिन अब हमें ये निकालना है कि इस टोटल 2.31 में व्हाट इज द पार्ट ऑफ कैटायन एंड व्हाट इज द पार्ट ऑफ एनायन, वो अब हमें डिटरमाइन करना है। हमें ये नहीं पता कि ये तो हमने निकाला है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, लेकिन अकेले इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के निकालने से ये तो पता नहीं चल पाता ना कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कैटायन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एनायन, वो अब हमें डिटरमाइन करना है। तो जो आर एन ए रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन की वैल्यू कितनी हो गई, 2.31 एंगस्ट्रॉन, ये यहाँ पे तो इतना तो हो गया। अब उसके बाद आगे देखें, जैसे कि हमने पहले देखा Na पॉजिटिव, व्हाट इट मींस बाय Na पॉजिटिव, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10। F नेगेटिव एटॉमिक नंबर 9 है फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आपके इलेक्ट्रॉन हो गए 10। मींस आफ्टर गेनिंग और लूजिंग, आफ्टर गेनिंग 1 electron, the number of electron in F negative ion is 10 in number. After losing 1 electron, the Na positive ion now has the 10 electrons. Means the Na positive and the F negative, these ions are the isoelectronic species. Means both have the same electron, that is 10 electron each. 10 electron each, and thus consequently they have the same screening constant, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम हो चुकी है। कॉन्फ़िगरेशन तो सेम हो गई ना, तो इसलिए इनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, सेम। स्क्रीनिंग कांस्टेंट का आंसर सेम आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं आएगा, वो अलग अलग आएगा। अभी आप देखेंगे कैसे। तो देखो, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन Na पॉजिटिव एंड F नेगेटिव कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्क्रीनिंग कांस्टेंट फ्रॉम द एक्चुअल चार्ज, जैसे मैंने ऊपर बताया था। जो इनका एटॉमिक नंबर तो सोडियम का तो 11 हो गया, जेड की वैल्यू सोडियम के लिए तो 11 है, और जबकि एफ के लिए आपकी 9 है, लेकिन माइनस जो एस है, एस की वैल्यू दोनों के लिए कॉमन होगी बिकॉज बोथ आर दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो इट मींस जेड इफेक्टिव की वैल्यू तो दोनों के लिए अलग अलग रहने वाली है। क्लियर हो गया? इसलिए तो हमने कहा था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जेड इफेक्टिव की वैल्यू जिसमें होगी ज्यादा, वही तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसका साइज हो जाएगा छोटा। ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हम निकालेंगे, अब हम तो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर 11, देखो हमने देखो यहाँ पे 11 लिख रखा है सोडियम के लिए। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, हमने पहले आपको ये चीज बता चुके हैं, हमने पहले आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बारे में। कैसे बताया था हमने कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप लिखते हैं इसकी, तो उसके लिए कुछ ग्रुपिंग बनाई जाती है, मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा। तो ग्रुपिंग कैसे बनाई गई थी, ग्रुपिंग बनाते वक्त हमें कुछ कॉमन चीजों का ध्यान रखना पड़ा था। वो कॉमन चीजें बोलो क्या थी जिसका हमें ध्यान रखना पड़ा। वो कॉमन चीजें थी हमारी कि हमने ये देखा, देखो मान लीजिए सोडियम है, जब भी आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कुछ किस टाइप से लिखते हैं, आपको ध्यान होगा आपने कुछ ऐसे लिखी थी, देखो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। देखो ऐसे हो गया ना, 6 to 8 to 10 और 111, ऐसा हमने लिख दिया सोडियम के लिए, लिख दिया ना हमने सोडियम के लिए। तो जब हमने सोडियम के लिए ऐसा लिख दिया तो अब हम करेंगे क्या, आपके जो ये रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स आप ग्रुपिंग कर दी, देखो हमने एक ग्रुपिंग, देखो ऐसे ग्रुपिंग की थी ना, देखो इस टाइप से ग्रुपिंग। फिर हमने आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना सिखाया था, तो फिर हमने ये बताया था कि जो आपके n-1 के लिए जो वैल्यू आपने देखी थी वो बोलो कितनी थी, यहाँ पे 0.35। ओके, और जो अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वैल्यू बोलो कितनी थी, जस्ट उससे अंदर आ गया था 0.85।
क्लियर हो गया। तो जो हमने जो टोटल वैल्यू यहाँ पे निकाली ये तो है सेम ग्रुप के। देखो हमने यहाँ पे किसका निकालना है, Na पॉजिटिव लिखेंगे तो ये तो आपका हट गया ना। तो नाउ द दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर द Na पॉजिटिव आयन। Na पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन है ये आपकी, क्योंकि Na की लिखी पहले हमने उसमें 3s1 था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Na पॉजिटिव बन गया। Na पॉजिटिव के अंदर जो वैलेंस ग्रुप है वो ये है, तो सेम जो ग्रुप होता है चाहे वो S का हो, P का हो, D का हो, F का हो, तो उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, 0.38। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 0.35 है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय, आप ध्यान से देखिए हमने 0.35 किया है। ये तो हो गया सेम ग्रुप। उसके बाद जो N-1 ग्रुप बन गया, इससे अंदर वाला जो N-1 ग्रुप है उसके लिए बोलो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.85। इलेक्ट्रॉन दो ही है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.85, तो ये जो इतनी वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये वैल्यू जैसे हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया ये 4.5 आ गई। तो 11 माइनस में 4.5 किया आपने, तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर द Na पॉजिटिव आयन। ओके, तो इसी टाइप से अगर हम निकालेंगे, नेक्स्ट किस चीज की निकालेंगे, फॉर द जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर हम फॉर फ्लोरीन के लिए निकालना चाहें तो उसके लिए देखो कैसे निकालेंगे, आप फिर से देखें। तो पहले हम इसको क्लियर कर दें यहां से। अब हम निकालते हैं, देखो यहाँ पे F नेगेटिव के लिए, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले फ्लोरीन की देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी। एटॉमिक नंबर बोलो क्या है फ्लोरीन का, 9। तो कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या बनी, 1s2, 2s2 और 2p5। लेकिन अगर आप F नेगेटिव की लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो बोलो क्या बन जाएगी, द कॉन्फ़िगरेशन विल बी द 1s2, 2s2 एंड 2p6। ओके, जैसे हमने Na पॉजिटिव का लिखा था। तो अब इसकी ग्रुपिंग करते हैं स्लेटर्स रूल के अनुसार। तो ग्रुपिंग की तो ये आपका NP वाला ग्रुप आ गया। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके लिए वैल्यू वही देखो बिल्कुल सेम जो ऊपर थी, 0.35 वैल्यू होगी इनके सेम ग्रुप वालों के लिए। तो बोलो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 0.35। ओके, तो अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले N-1 के लिए वैल्यू बोलो क्या होती है, 0.85। देखो वही तो वही हमने कहा था, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू तो दोनों के लिए बोलो क्या आई है, बिल्कुल सेम आई है। लेकिन क्योंकि आपके एटॉमिक नंबर तो दोनों का अलग है, सोडियम का 11 था, देखो 11 माइनस 4.5 करना पड़ा। आपका जो यहाँ पे फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर तो देखो 9 है, इसलिए 9 माइनस 4.5 करना पड़ा आपको। तो इस तरीके से दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू तो अलग अलग आनी थी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलो किसका ज्यादा आया यहाँ पे, आपका Na पॉजिटिव आयन का ज्यादा है और F नेगेटिव का देखो कम है। इसीलिए आपकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका ज्यादा आया, बोलो किस चीज के अंदर ज्यादा आया, Na पॉजिटिव में। इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए Na पॉजिटिव आयन का साइज छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका 4.5 आया, तो ये इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसका साइज बड़ा रहेगा। तो जो ये दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है इनमें किसका बड़ा साइज किसका छोटा, आपका Na पॉजिटिव आयन का साइज छोटा होता है और F नेगेटिव का साइज बड़ा होता है। तो आप स्लेटर्स रूल की हेल्प से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं उनमें से किसका साइज बड़ा होता है और किसका छोटा। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी दिया जा सकता है अलग से, कि स्लेटर्स रूल के बेसिस के ऊपर बताएं कि जो Na पॉजिटिव और F नेगेटिव इसमें किसका साइज बड़ा और किसका छोटा। तो आपको कैलकुलेट करके दिखाना होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसके बेसिस के ऊपर आप बाद की स्टेटमेंट लिख देते हैं कि एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर इन Na पॉजिटिव आयन फॉर द सेम 10 electrons, so the attraction between the nucleus and the valence these 10 electrons increases in case of the Na positive ion, while not so much attraction in case of the F negative, because the effective nuclear charge here is the 4.5 here. Okay, so that's the way to explain the trend of size between these isoelectronic species on the basis of the Slater's rule. अब हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर रहते हैं। हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे चला हुआ था जो मैं एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के बाद हमें हमारा मेन पर्पस तो वही रहा ना, हमें तो साइज कैलकुलेट करना है। तो साइज जो अब हम कैलकुलेट करें तो वो कैसे करें कैलकुलेट, तो साइज कैलकुलेट करने का अब हमारा मेन पॉइंट तो देखो यहाँ पे ये आ गया कि RNA पॉजिटिव और RCl जो नेगेटिव है। तो अब हम इसका जो साइज जो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो किस टाइप से देखो कैलकुलेट करेंगे, अब आप वो देखें, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो जैसे कि हमने पहले डिटरमाइन किया था
लिखा था कि आर आयन इज इक्वल टू ये कांस्टेंट सी डिवाइडेड बाय जेड माइनस एस। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो आर एन ए पॉजिटिव, देखो अगर हम आर आयन की जगह एन ए पॉजिटिव लिख देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर Na पॉजिटिव इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय 6.5। क्योंकि जो वैल्यू आई है जेड माइनस एस की Na पॉजिटिव के लिए, बोलो क्या आ गई यहाँ पे 6.5, जबकि एफ नेगेटिव के लिए वैल्यू क्या आई थी जेड माइनस एस की 4.5। ओके, तो फॉर द एफ नेगेटिव आयन वी विल राइट हेयर कि आर एफ नेगेटिव इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय जो कांस्टेंट था डिवाइडेड बाय 4.5। ओके, अब उसके बाद जो हमने ऊपर लिखा था आर एन ए पॉजिटिव प्लस आर सी एल नेगेटिव इक्वल टू 2.35, अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे हमने पुट किया, आर एन ए पॉजिटिव की जगह हमने लिख दिया सी डिवाइडेड बाय 6.5 और आर सी एल नेगेटिव की जगह हमने लिख दिया सी डिवाइडेड बाय 4.5 इज इक्वल टू 2.35। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद सी की वैल्यू आ जाती है 6.41। आप कैलकुलेट करके देखना, आंसर यही आना चाहिए। अब हम इस सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब जो ये ऊपर हमने देखो लिखा था, अब हमें क्या निकालना है, रेडियस ही तो निकालना था। देखो आर एन ए पॉजिटिव क्या है, सी डिवाइडेड बाय 6.5 और सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। जस्ट पुट दैट सी वैल्यू हियर। आपने सी की वैल्यू देखो यहाँ पे पुट की, सी की वैल्यू कितनी थी 6.41। तो सो आर एन ए पॉजिटिव आयन का जो रेडियस है वो आ गया, बोलो कितना आया 6.41 डिवाइड बाय 6.5, तो यहाँ पे था 0.95। सिमिलरली आप यहाँ पे जो एफ नेगेटिव आयन है उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यही जो 6.41 है ये वैल्यू आप कहाँ पे पुट करेंगे, देखो यहाँ पे इस जगह के ऊपर आप पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आर एफ नेगेटिव का क्या हो जाएगा 6.41 डिवाइड बाय 4.5। तो इस तरह से आप एफ नेगेटिव आयन का भी रेडियस निकाल सकते हैं। तो दैट्स द वे कि हमने पोलिंग मेथड को यूज किया और उसको यूज करते हुए हम जो आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर जो कैटायन और जो एनायन होते हैं उसका जो साइज है हम डिटरमाइन कर सकते हैं। साइज मींस रेडियाई को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब ये कुछ क्वेश्चंस का हम रिवीजन आपको करवाते हैं कि नेम द स्पीसीज दैट विल हैव द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम और दी आयंस, जो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कोई ऐसा भी होगा जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं भी होगा। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं, हम प्रैक्टिस तो कर ही चुके हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन थी, द स्पीसीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फर्स्ट केस में अगर हम देखें एफ नेगेटिव, तो एफ नेगेटिव के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9, तो एटॉमिक नंबर था। तो 9 प्लस 1 बोलो कितने हो गए आपके यहाँ पे 10 हो गए। तो द स्पीसीज, तो जो ये जो पार्टिकुलर स्पीसीज है इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलो कितने हो चुके हैं आपके 10 हो चुके हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 10 इन नंबर। ओके, सम ऑफ इट्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर, अगर आप देखें जैसे कौन हो सकती है इसकी और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और जो इससे कोरिलेटेड हो सकती है, जैसे Na पॉजिटिव उसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नियोन उसके अंदर भी 10 होते हैं, O2 नेगेटिव वो 10 होते हैं, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव उसमें भी देखो 10 हो जाएंगे क्योंकि 13 - 3। तो एंड सो ऑन। वही हमारा क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नेम ए स्पीसी that will be isoelectronic with each of the following atom or the ions। F नेगेटिव जैसी और किसी स्पीसी का नाम बताएं। तो अब हमने F नेगेटिव के अंदर क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन था तो उस जैसी और कौन सी स्पीसी हो सकती हैं, उनके नाम हमने आपको यहाँ पे बताए। वो स्पीसी Na पॉजिटिव हो सकती है, नियोन हो सकती है, O2 नेगेटिव हो सकती है, Al3 पॉजिटिव हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट द आर्गन। 18 एटॉमिक नंबर, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 जैसी और कौन कौन सी स्पीसी हो सकती है। 18 के नजदीक वाले एटॉमिक नंबर वाले आप देखेंगे सल्फर, ग्रुप नंबर 16 में सल्फर 2 नेगेटिव क्योंकि 18 जैसा हो गया, S2 नेगेटिव। क्लोरीन देखें Cl नेगेटिव, 17 प्लस 1 18 हो गया। पोटाशियम 19 एटॉमिक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद K पॉजिटिव 18 हो गए। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 20 एटॉमिक नंबर था, फिर 18 हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन जैसी और स्पीसी कौन, वो हम पहले ही देख चुके हैं अपने पार्ट नंबर 1 के अंदर, तो वो सारे नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द रुबिडियम, एटॉमिक नंबर 37। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया क्योंकि +1 चार्ज है इसके ऊपर, तो 36 इलेक्ट्रॉन वाली और स्पीसी कौन हो सकती है, एक तो क्रिप्टॉन ही हो गया, ग्रुप नंबर 18 का क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन हो गया। ब्रोमीन Br नेगेटिव आयन 35 एटॉमिक नंबर है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया 36 हो गया। स्ट्रोंशियम 38 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए 36 हो गए। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज। ये कुछ स्पीसीज हैं हमारे सामने, व्हाट इज कॉमन इन देम, इन सभी में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, और उसके बाद इन सारी स्पीसीज का
इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई के अकॉर्डिंग इनको अरेंज भी करें। तो इनमें कॉमन आपको क्या दिखाई दिया? कॉमन ये दिखाई दिया कि ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बड़े ध्यान से आप देखें, एटॉमिक नंबर अलग है, चार्ज अलग है। उन चार्ज को देखते हुए आप देख पाएंगे, जैसे आपका नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, तो उसके बाद 7 3 - तो 10 हो गए। ऑक्सीजन 8 2 - 10 हो गए। फ्लोरीन 9 + 1 आपके 10 हो गए ना। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो नाइट्रोजन 7 + 3 10 हो गए, 8 + 2 10 हो गए। क्लोरीन में 9 + 1 आपके 10 हो गए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 11 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। मैग्नीशियम 2+ चार्ज है तो 12 - 2 यानी 10 हो गए। एल्यूमिनियम के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो, 3 पॉजिटिव तो 10 हो गए। यानी सभी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑल आर दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दैट द कॉमन थिंग इन देम। सेकंड था इनको अरेंज करें। हमने पीछे ही तो पढ़ा था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। हमने कॉमनली देख भी लिया था वहां पे, हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और वो ज्यादा अट्रैक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और उसका साइज सबसे छोटा होगा। तो जो इसलिए उसी बेसिस के ऊपर आपके जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हम पहले ही दे चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें इनको अरेंज करना था ऑन दैट बेसिस। तो N3 नेगेटिव सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो सबसे बड़ा साइज होगा, और Al3 पॉजिटिव इसका सबसे छोटा साइज होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना था, मतलब सबसे पहले हमें उसका साइज लिखना है जिसका साइज सबसे छोटा हो, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब था? छोटा बड़ा 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 बड़ा। लेकिन आप ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे जो लिख दिया N3 नेगेटिव आयन जो साइज है इस लेस देन तो नहीं है, इसका साइज तो सबसे बड़ा है। तो इस चीज में देखो मैं अभी एक करेक्शन कर देता हूं यहाँ पे, जस्ट ए मिनट। देखिए, हमें करेक्शन करने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं। देखो क्यों? क्योंकि हमने पहले जो ऑर्डर लिखा है ये आपका किस चीज का लिखा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन का लिखा है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे ज्यादा बोलो किस में होगा? आपके इस नाइट्रोजन के केस में होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप ध्यान से देख पाए, नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो चुके हैं। तो 7/10, 0.7 इसका कम ही है ना? तो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? 8/10 इसका थोड़ा ज्यादा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद इसमें देखेंगे 9/10, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका और ज्यादा हो गया। अब ध्यान से देखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका है? ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट आपका ये ऑर्डर है। नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पे कि सोडियम के केस में 11/10 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन 1/1 हो गया। सोडियम के मैग्नीशियम के केस में देखें 12/10 हो गया, और एल्यूमिनियम के केस में देखें, देखो 13/10 हो गया। तो ये ऑर्डर किस चीज का हमने देखा यहाँ पे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में है? एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव के अंदर है। तो यही हमने यहाँ पे लिख रखा है। क्लियर हो गया? तो ये ऑर्डर हमारा बिल्कुल ठीक है। ये साइज का ऑर्डर नहीं था, ये बोलो किस चीज का ऑर्डर हमने यहाँ पे लिख रखा है? दैट इज द ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर हो गया? इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो अगला पॉइंट अब आ जाएगा यहाँ पे, साइज के बारे में अब हम देखेंगे। देखो, तो न्यूक्लियर चार्ज तो हमने देख लिया, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, देखो +7 आ गया। और एल्यूमिनियम के केस में जैसे आपका जो 1.3 आया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियर चार्ज था इनका कि किसके अंदर कितना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी मैंने आपको कैलकुलेट करके साथ के साथ दिखा दिया। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। इसीलिए सबसे छोटा साइज किसका हो गया? Al3 पॉजिटिव का सबसे छोटा होगा, और N3 पॉजिटिव आयन का साइज सबसे बड़ा होगा। क्लियर हो गया? तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। The size of isoelectronic species F negative, neon, Na positive is affected by which of that particular thing? अभी अभी हमने पढ़ा जो साइज है उसके दौरान हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करते हैं, पर इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं। सो दैट इज द मेन थिंग जो हम देखते हैं। तो मीन्स द साइज ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इंक्रीजेस
कब इंक्रीज होता है? विद डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अभी हमने देखा था रेडियस का रिलेशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ रेसिप्रोकल था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो मीन जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसका, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना छोटा साइज होगा उस पीसी का। तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। सो ऑन दैट बेसिस अगर हम देखें यहाँ पे जो फ्लोरीन नियोन इनका जो जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर, तो फ्लोरीन का 9 है, नियोन का 10 है, Na पॉजिटिव का 11 है। तो इसीलिए आप जो देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो निकलेगा, क्योंकि इन सभी के अंदर तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 9/10, 10/10, 11/10, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Na पॉजिटिव के लिए सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा होगा तो क्या होगा? सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगी, इसलिए Na पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होगा और F नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा। तो मीन्स जो भी जो साइज होता है इस इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बीच विच इज अफेक्टेड बाय द न्यूक्लियर चार्ज, किसके द्वारा इफेक्ट होता है? वो न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा अफेक्टेड होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि एटॉमिक साइज क्या, कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप के एटॉमिक रेडियाई कौन कौन सी हो सकती है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक साइज को अफेक्ट करते हैं, एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हमने पढ़े। और हमने डिटरमाइन भी किया पोलिंग स्केल के बेसिस के ऊपर कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं रेडियस को, कैसे डिटरमाइन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग that particular lecture, and thanks for keeping patience, for listening me very carefully. Thank you.